बच्चों, कल मैंने जो आपको वीडियो भेजा था चैप्टर नंबर 3 द ड्रेनेज सिस्टम, आज उसके आगे का मैं समझा रही हूँ। द यमुना वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट tributary of the Ganga has in its shore in the Yamunotri glaciers on the western slopes of the Bandpanch range. 6 kilometer. It joined the Ganga at the Prayag, Allahabad. It is joined by the Chambal, the Sindh, the Betwa, and the Ken on its right bank, which organized form of peninsular plateau, while the Hindan and the Rand and the Sangar, the Vernes, etc., join its left bank. The Chambal rises near Mahu in the Malwa plateau of the Madhya Pradesh and flow northward throughout the gorges upward of the Kota in Rajasthan, where the Gandhi Sagar Dam has been constructed from Kota. It traverses down to the Bundi, Savli, Madhopur and Dholpur, and finally joined the Yamuna. The Chambal is famous for its badland topography called the Chambal rivers. गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना का स्रोत बंदरपंच रेंज 6,316 किलोमीटर के पश्चिम ढलानों पर यमुनोत्री ग्लेशियर्स में है। यह प्रयाग इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। यह अपनी दाहिने किनारे पर चंबल, सेंध, बेतवा और केन से जुड़ा हुआ है, जो प्रायद्वीप पठार से निकलता है, जबकि हिंडन, रेत, सेंगर, वरुण आदि इसके बाएं किनारे पर जुड़ते हैं। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मऊ के पास उगता है और राजस्थान में कोटा के एक गार्ज अपवाड़ों के माध्यम से उत्तर की ओर बहती है, जहाँ गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। कोटा से यह बूंदी सेवाई तक जाकर माधोपुर और धौलपुर और अंत में यमुना में मिल जाते हैं। चंबल अपनी बैडलैंड स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल की घाटी भी कहा जाता है। Gandak comprise two streams, namely Kali Gandak and the Trishul Ganga. It rises in the Nepal Himalaya between the Dhulgari and the Mount Everest and drains the central part of Nepal. It enters the Ganga plain in Champaran district of Bihar and joins the Ganga at Songpur near Patna. The Ghaghra, organized in the glaciers of Mapchugo after the collecting the water of its tributes, the Seti and the Beri, it's come out of the mountain, cutting a deep gorge of Seshpatni, and the river Sarda, Kali or Kali Ganga, join it in the pen before it finally meets the Ganga at the Champaran. Kosi is an antecedent river with the source of the north of Mount Everest in the Tibet, where its main stream around rises after crossing the central Himalaya in Nepal. It is joined by the Son Kosi from the west and the Tamur Kosi from the east. It forms Sapt Kosi after unity with the river Arun. The Ramganga is a small river rising in the Garhwal hills near the Grecian. It changes its course to the southwest directions after crossing the Shivalik and the entire into the plain of Uttar Pradesh near Nizamabad. Finally, it joined the Ganga near Kanauj. The Damodar occupies the eastern margin of the Chota Nagpur plateau, where it is flow throughout the Rift Valley and they finally join the Hooghly. The Barkar is the main tributary. Once known as the Sorrow of Bengal, the Damodar has been now tamed by the Damodar Valley Corporation's a multi-purpose project.
The Sardar of Saru, Saru River rises in the Milam glaciers in the Nepal Himalaya, where is known as the Gauri Ganga. Along the Indo-Nepal border, it is called the Kali or Chuk, where is joined the Ghagra. The Mahananda is another important tributary of the Ganga rising in the Darjeeling Hills. It joined the Ganga as its last left bank tributary in West Bengal. The Sun is a large south bank tributary of the Ganga, originating in the Amarkantak Plateau. After forming a series of waterfalls at the edge of the plateau, it reaches आरा वेस्ट ऑफ द प्लेटू टू जॉइन द गंगा। बच्चों, गंडक में दो धाराएं शामिल हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ये धौलगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से नेपाल हिमालय से उगता है और नेपाल के मध्य भाग में बहता है। ये बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। घाघरा और उद्रम मंच पंचांगों के हिमदर्दों से होता है। अपनी सहायक नदियाँ टीला, सेती और बेरी का पानी इकट्ठा करने के बाद यह शीशा पानी में एक गहरी खाई को काटते हुए पहाड़ से निकलती है। शारदा नदी काली या काली गंगा अंत में छपरा में गंगा के से मिलने से पहले मैदान में मिल जाती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत में तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद ये पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व में तैमूर कोसी से जुड़ जाता है। ये अरुण नदी के साथ मिलकर सप्त कोसी का निर्माण करती है। रामगंगा तुलनात्मक रूप से गैर से के निकट गढ़वाल पहाड़ियों से उगने वाली एक छोटी सी नदी है। यह शिवालिका को पार करके दक्षिण पश्चिम दिशा में अपना मार्ग बदल लेती है और नाजियाबाद के पास उत्तर प्रदेश के मैदानों इलाकों में प्रवेश करती है। अंत में ये कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। दामोदर छोटा नागपुर के पूर्व हाशिए पर पठार, जहाँ ये ब्रश घाटी से होकर बहती है और अंत में हुगली में मिल जाती है। बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कभी बंगाल के शौक के रूप में जाने जाने वाली दामोदर को अब दामोदर घाटी निगम एक बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा निर्मित किया गया है। शारदा व सरयू नदी नेपाल हिमालय से मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा के साथ इसे काली या चौक कहा जाता है, जहाँ यह घाघरा में मिलती है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली गंगा की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह पश्चिम बंगाल में अपने अंतिम बाएं किनारे की सहायक नदी के रूप में गंगा में मिल जाती है। सोन गंगा की एक बड़ी दक्षिण तट की सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से मिलती है और पठार से किनारे पर इलाकों को श्रृंखला बनाने के बाद यह एक पटना के पश्चिम में आरा पहुंचकर गंगा में मिल जाती है। The Indus River system. This system comprises the Indus and its tributaries. The length of the Indus River, about 2,900 km, rises in Tibet and near the Mansarovar, flow toward the west, forming a beautiful 500-meter deep gorge in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. From here, it flows toward the southwest, entire Pakistan, and finally falls into the Arabian Sea. The 5 tributaries of Indus are the Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, and Satluj. This range of the 5 rivers is known as the Punjab. The water of this river is used in Punjab, Haryana, and the southwestern part of Rajasthan for irrigations. बच्चों, सिंधु नदी तंत्र। इस तंत्र में सिंधु अपनी सहायक नदियों में सम्मिलित किया गया है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलकर पश्चिम की ओर बहती और जम्मू और कश्मीर से लद्दाख जिले के 500 मीटर की ऊंचाई एक सुंदर दर्शनीय गार्ज बनाती और बहती। यहाँ से एक दक्षिण
पश्चिम में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर अंत में अरब सागर में मिल जाती। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज 5 नदियों की इस प्रदेश को पंजाब कहते हैं। जल प्रवाह की मात्रा वर्ष भर एक समान नहीं रहती। इसके जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण पश्चिम भागों में भी सिंचाई के लिए करते हैं। द पेनिनसुलर रिवर। The river of Peninsular in India, the river of Peninsular India are seasonal. They flow from dry area. Their length is also less than those that originate from of Himalayas. They do not form plains. The main water divide in Peninsular India are the Western Ghat, which extend north-south near the western coast. Rivers of Peninsular India like the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri flow eastward of drain into the Bay of Bengal. They form delta. The river flowing into the western Ghat are small. The Narbada and Tapi are two large westward flowing rivers. They flow in the Rift Valley and forming the tidal mouth of estuary where is joined the Arabian Sea. बच्चों, प्रायद्वीप भारत प्रायद्वीप की नदियों की विशेषता है कि मौसमी है, शुष्क क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इनकी लंबाई भी हिमालय से निकलने वाली नदियों से कम है। ये गहरे जमाव से मैदान नहीं बनाती। प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीप भाग की अधिकतर नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये डेल्टा बनाती है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ छोटी हैं। नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर से ब्रश घाटी में बहती है और ज्वारन मुख का निर्माण करने के उपरांत खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में मिलती है। नर्मदा बेसिन। द नर्मदा, it rises from the Amarkantak Plateau in the Madhya Pradesh, flowing 1312 km throughout the Rift Valley and finally drains into the Arabian Sea. It drains Madhya Pradesh and Gujarat. It forms the Dhodhar, falls in the marble rock of Bedaghat and Jabalpur. Its tribes are very small. बच्चों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर गहरी ब्रश घाटी में 1312 किलोमीटर में बहती हुई खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात में है। ये जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात बनाती। इसकी सहायक नदियाँ बहुत ही छोटी है। द तापी बेसिन्स। द तापी, it rises near the Multani in Betul district. It is the Satpura range of Madhya Pradesh. It is 724 km long. It flows in Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and finally reach in Gulf of Cambay. बच्चों, तापी नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी बेसिन। इट राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट नियर द नासिक एंड फ्लो फॉर 1500 किलोमीटर इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, वर्धा, मांजरा, वेगनगा एंड द पेनगंगा are the tributes. It is the largest river system of peninsular India. Due to its large area, it is also called the Dakshin Ganga. गोदावरी नदी, यह नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलकर 1500 किलोमीटर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ वर्धा, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। प्रायद्वीपीय नदियों से उसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। द महानदी बेसिन। द महानदी, इट राइजेस इन द शिवा, द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़
It is 858 kilometer long. Its drainage basin lie in Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Orissa. Hirakund Dam is built on this river. The second one is the Krishna Basin. It rises in the Maharashtra near the Mahabaleshwar. It is 1400 kilometer long. It flows in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, the Koyana, the Panchganya, the Malbarba Ghat, Prabha, Bahima, Musi, Tongabhadra are its the major tributes. Almaty and the Nagarjuna Sagar dams are built on this river. महानदी पे इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि के सिहावा नामक स्थान में हुआ है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। इसका अफवाह तंत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में। इस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ये महानदी का पूरा उद्गम है। कृष्ण नदी, इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। कोयना, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा एंड उसकी सहायक नदियाँ। इस पर अलमाटी और नागार्जुन बांध निर्मित किए गए हैं। लेक्स, अब हम लेक्स के बारे में देखेंगे। व्हाट इज लेक? अ लेक इज एन accumulations of water laying in the depressions in the earth's surface. Lakes are formed due to the various reasons. The amount of salt dissolved in water makes the lake water salty or fresh. Artificial lakes are also built by the constructing dam on river. Lakes are important for tourism, fish farming, productions of salt, etc. बच्चों, झील धरातल के निचले भाग का वह जल राशि जो चारों ओर से स्थल से घिरी हो झील कहलाती है। झीलों का निर्माण विविध कारणों से होता है। जल में घुली लवण की मात्रा झीलों को खारा अथवा मीठा बनाती है। नदियों पर भी बांध बनाकर कृत्रिम झीलें भी बनाई जाती। इस झीलों का महत्व पर्यटन, मछली पालन, जल की प्राप्ति और नमक निर्माण आदि के लिए भी किया जाता है। झील, डल झील। द डल झील you may be familiar with the valley of Kashmir and the famous Dal Lake. The houses, boats and the shikaras which attract thousands of tourism every year. Similarly, you may have visited some other tourist spot near lake and enjoy boating, swimming and other water games. Imagine that it is a Srinagar National and other tourism places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? Have you ever tried to know the importance of lake in making the places of attractive to tourism? बच्चों, आज हम लेक के बारे में देखेंगे कि लेक क्या होती है। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, तैराकी व अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे इतना भी आकर्षित करने जितना कि आज करते हैं। कि आपको कभी भी ये जानने की कोशिश किए कि इन पर्यटकों का आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। डल झील कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील मानी गई है। झीलों के बरसात के मौसम में हिमनदों और बर्फ़ के चादरों की क्रिया के परिणाम स्वरूप हवा और नदियों की क्रिया व मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप
एक ऑक्सबो झील का निर्माण तब होता है जब पानी मुख्य धारा से पानी की एक स्वतंत्र शरीर का निर्माण करता है। राजस्थान में सांभर झील खारे पानी की झील है। इसके पानी का उपयोग नमक बनाने में भी किया जाता है। हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली कई मीठे पानी की झीलें हिमनद मूल की है। जम्मू और कश्मीर में वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पीने की झील है। दल, भीमतल, नैनीताल, लोकतंत्र भारत में मीठे पानी की कुछ महत्वपूर्ण झीलें। पंजाब में गुरु गोविंद सागर झील एक नदी की बांध के परिणाम स्वरूप बनी है। अब आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ लेक। लेक से क्या इम्पोर्टेंस है? डेवलप टूरिज्म, मेंटेन द एक्वेटिक सिस्टम, enhance the natural beauty of place, moderate the climate of the surrounding place, help in the providing flood during the rainy season, source of hydel power, help maintain flow of water during the summer season, regulate the flow of the river, provide recreations। ये सब इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स है। रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। बच्चों ये हम कल समझेंगे। आज आपका यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, बाकी का आपको कल पढ़ाऊँगी।